contraction. Okay. According to lanthanoid contraction, what does it mean that here you are starting with lanthanoid, okay? First element is your lanthanum, and after that you have cerium, and you goes to luteum. So all these are present in one group, सब एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, दैट इज योर ग्रुप 3. आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट्स हो जाए तो ग्रुप तो उसका सेम ही रहेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ग्रुप थर्ड ओनली. तो ग्रुप थर्ड में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ये सब इसी के अंदर प्रेजेंट है, तो सब टॉप टू बॉटम ही होंगे, तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. लाइक दिस शुड हैव ग्रेटर साइज, इट शुड बी लाइक दिस, बट सॉरी, ओके आई एम सो सॉरी. एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए, दैट मीन्स इट हैज टू बी लाइक दिस, इस तरीके से साइज इंक्रीज होगा. बट इन रियलिटी साइज जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है, दैट मीन्स इसका साइज इससे बड़ा होगा, देन नोडिमलम का साइज इससे बड़ा होगा, एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. उसका रीजन क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. And why this lanthanide contraction is coming into the picture? It is because the electrons are being filled in f orbital. And when electrons are being filled in f orbital, their shielding is very poor. Very poor shielding. That means they are not protecting the valence electrons from the nucleus properly, due to which the nucleus is able to contract the valence electron towards itself more efficiently, because these electrons which are present in between, these are not efficient enough, and due to that your atomic size is increasing. And since this is happening in the lanthanoid series, that is why it is called as lanthanoid contraction. Is that clear? Okay, so let's just write down this. So in this you can write down cause of lanthanoid contraction. So as we move from Ce, whose atomic number is 58, to lutetium, whose atomic size is 71, there is progressive addition of 14 protons inside the nucleus. In the same way, electrons are filled in 4f orbital, which possesses poor screening effect, as a result of which increased nuclear charge pulls electrons, electron cloud कर लो, pulls electron cloud of 5d and 6s towards itself, causing reduction
इन साइज. सो 4f से पहले 5d और 6s ऑर्बिटल आते, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पुल कर लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से साइज में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. कोई सिंपल टर्म्स में आपको कोई रीजन पूछे, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, योर आंसर इज गोइंग टू बी ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f electrons. Okay, write down this. This is 2. Krish, it is written cerium 58 to lutetium 71, Lu. Periodic table में we are talking about from here cerium to lutetium. ओके यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे एक्टिनॉइड सीरीज का, दैट इज थोरियम टू लॉरेंशियम. सो नोट डाल के लिख लो. सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन इन साइज is observed in actinide series due to poor shielding effect of 5f subshell, which is called as actinide contraction. सो सेम तरीके का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व होता है एक्टिनाइड सीरीज में भी. उसमें किसकी बात होती है, बाय द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f सबशेल. Okay, next is your consequences of lengthenoid contraction. What will happen because of the lengthenoid contraction? What changes you are going to observe in the periodic table? So next is consequences of lengthenoid contraction. First thing is similarity in size of 4D and 5D series elements. Okay, what they want to say, let's check this periodic table and then understand. So in this periodic table, this is your 3D series, this is your 4D series, and this is your 5D series. And what does the statement says? There is a similarity in the size of 4D and 5D series. So we know that from top to bottom atomic size should increase, okay, because of the increase in number of shells. So of course this hafnium should have greater size as compared to zirconium, okay. Tantalum should have greater size as compared to niobium. Same tungsten should have more size as compared to molybdenum, and so on. But because of the filling of 4f orbital here, in this you start filling the 4f electrons. So since you are filling the 4f electrons, there is a lanthanoid contraction, and because of the lanthanoid contraction their size decreases. And it's not
द साइज इज डिक्रीजिंग, बट इतना डिक्रीज नहीं हो रहा है कि इससे कम हो जाए, बट इन दोनों का साइज, इन सब का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? लेट मी नो जल्दी से. इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक साइज. ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये क्लियर होना चाहिए. ओके, सो जस्ट लेट्स जस्ट राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट हियर. यहाँ पे लिख लो यट्रियम, zirconium, Nb, molybdenum. So this is your 4D series and this is your 5D series. So their atomic sizes are almost equal. Okay, here. ऑल दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल. बट स्टार्टिंग में ये जो येट्रियम है 4D सीरीज का पहला एलिमेंट, और यहाँ पे जो लैंथनम है 5D सीरीज का पहला एलिमेंट, उस केस में लैंथनम का साइज ग्रेटर होता है येट्रियम के केस में, बिकॉज यहाँ से अभी 4F भरना स्टार्ट नहीं हुआ है. 4F भरना जो स्टार्ट हुआ है वो लैंथेनाइड के जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे फिलिंग चालू होती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइज तो इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, बट बाकी सबका जो साइज है इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी सिमिलर. ओके, write down this. दिस इज नॉट लाइक, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये दिस इज नॉट कमिंग इनटू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में. बट 4F फिलिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद डी ऑर्बिटल की फिलिंग चालू हुई है. तो चाहे तो यहाँ पे लिख लो द एलिमेंट्स कमिंग after lutetium, okay, that is your with atomic number 71, that is from HF, that is 72 to PB 82, are having effects of lanthanoid contraction, which is your post lanthanoid contraction, due to which size of 5D series elements becomes nearly similar to 4D series elements. Write down this.
Okay, tell me, what will be the answer for this question? So what is your answer? जल्दी से बताओ. Write down this question, and then I am opening this periodic table for you, and let me know what will be your answer now. यस प्रज्ञा, योर आंसर इज राइट. गुड. देखो ऑप्शंस में क्या क्या है. ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना थोड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो जाएगा. फर्स्ट इज सेइंग कि आपको कंपेयर करना है स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथनम में. तो वो आपको मैंने यही बताया कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और लैंथनम के केस में कोई लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज 4f पे और इलेक्ट्रॉन्स फिल होना चालू नहीं हुआ है. तो ऑब्वियसली लैंथनम का साइज ग्रेटर होगा येट्रियम से, देन स्कैंडियम से. तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. देन सेकेंड ऑप्शन है कि आपके पास टाइटेनियम है, जिंक है, और फिर ऑलमोस्ट एच के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसको. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देख लो आप किसकी बात कर रहे हो. यहाँ पे यू हैव दिस थिंग. ओके, एंड देन यू हैव, ओके आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली जेड एन की जगह जेड आर होगा. आई एम सो सॉरी, इसको जेड आर कर दो. इट्स नॉट जेड एन, इट्स जेड आर. ओके, सो नाउ वी हैव टू कंपेयर हियर बिटवीन दीज एलिमेंट्स. तो आपको ये पता है कि जेड आर तो बड़ा होगा टाइटेनियम से, नो डाउट इन दैट. बट हाफनियम के केस में और जिरकोनियम के केस में ये आपके पास 4D और 5D सीरीज आ गया. तो यहाँ पे लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनका साइज जो है एटॉमिक साइज इट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू लाइक सिमिलर साइज होने वाला है. देन आपके पास है निकल, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम. इस तरीके से मतलब हम बात कर रहे हैं दिस थिंग. अगेन निकल का साइज तो कम होगा ही, बट प्लैटिनम और प्लैटिनम का साइज ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, इक्वल. देन आपके पास ऑप्शन है फी, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. तो ये हमने बोला ही था आपको, इस सीरीज में 3D सीरीज में जब आयरन, कोबाल्ट और निकल को हम कंसिडर करते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर. तो आंसर हो जाएगा आपके पास ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव. समझ में आया कि नहीं आया, लेट मी नो. Okay, so here you have one question. This is from NEET level question. ठीक है, 2004 का नीट का क्वेश्चन है. Solve this question and let me know what will be your answer.
जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में. क्वेश्चन से ही पता चलेगा मेरे को कि दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और नॉट. सो एवरीवन हैव टू गिव द आंसर. सुहान, सुहास, वरुण, आंसर द क्वेश्चन. यश, यशिका, ओमकार, व्हाट आर यू डूइंग? रेणुका, प्रियांशु, नाजनीन, टेल गिव मी योर आंसर. कौशिक, हर्षित, मौर्य, ध्रुव, एवरीवन हैव टू आंसर. क्या होगा क्वेश्चन? यस, गुड. ऑप्शन विल बी ए, है ना. आयनिक रेडियाई आर. आयनिक रेडियाई, चाहे नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई की बात करो, चाहे आप आयनिक रेडियाई की बात करो, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है. अब न्यूक्लियस का पावर अगर बढ़ेगा तो वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ मोर क्लोजली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है, चाहे आप एटॉमिक साइज की बात कर लो या फिर आयनिक साइज की बात करो, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. तो इसका मतलब है जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज. इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बात समझ में आई? सिमिलरली सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. ठीक है, एक और क्वेश्चन करो. दिस इज योर नीट क्वेश्चन 2010. What will be the answer for this? रेणुका, आपको समझ में आया? आपने गलत आंसर किया था. नाजनीन, यूट्यूब. सो एवरीवन हैव टू आंसर सो दैट आई विल गेट टू नो दैट वेयर यू आर लैकिंग एंड व्हाट, वेयर योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर. Do this question. This is also for NEET 2010. Okay, this is the question for JEE Mains 2015.
Okay, solve all these three questions and let me know your answer. मैं इसको मार्क कर देती हूँ सो दैट इट विल बिकम ईजी. वो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2, question number 3 and question number 4. This is for NEET, this is for JEE and this is also from JEE. Previous year question है. Try to solve it. Okay, look at question number 2. Question number 2 का आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, सी. ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर, बोला है कि इन सब में से आपको एटॉमिक साइज फाइंड आउट करना है. तो पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं. वी हैव क्लोरीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. So we have here chlorine, phosphorus, magnesium and calcium. Of course, calcium has your it is in your first, second, third and fourth period. Okay, so fourth period में number of shells ज़्यादा होंगे, calcium will have the greater size. Then magnesium, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट आपको पता है साइज डिक्रीज होता है. देन यू विल हैव फॉस्फोरस एंड एंड में यू विल हैव क्लोरीन. सो आंसर हो जाएगा सी. कुछ इतना लॉजिक ही नहीं लगाना है. इफ़ यू लिटिल बिट नो कि क्या पीरियोडिक टेबल का वेरिएशन है, एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप आंसर इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस आर रेस्पेक्टिवली. अब देखो, वैल्यू देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वैल्यू दे दिया. आपको इनका ऑर्डर लिखना है और इनका ऑर्डर लिखने के बाद यू जस्ट हैव टू फाइंड अरेंज देम कि किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा. बस यही करना है आपको. ठीक है, तो टेल मी क्या होगा इसका आंसर. ओके, देखो सबसे पहले N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस. ठीक है, N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस. 1 सेकेंड. इसमें कितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, प्लस 3 हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. 9 इस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक माइनस चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. तीनों पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है. बट प्रोटॉन्स की बात करें, इस पे 7 प्रोटॉन्स है, इस पे 8 प्रोटॉन्स है और इस पे 9 प्रोटॉन्स है. ओके, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर, क्योंकि ये कौन से स्पीशीज हो गए, दीज आर योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए मैंने क्या बताया था कि क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो देन गो फॉर कि उस किसके पास ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए. तो ऑफ कोर्स हियर इट हैज़ द मोर पावर. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइज़ क्या होगा, कम. तो सबसे ज़्यादा साइज़ होगा N3 माइनस का, फिर O2 माइनस का और लास्ट में साइज़ होगा F माइनस का. तो आपका आंसर हो जाएगा ए. ओके, यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ इजी क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. यू जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट ऑफ कॉशियस हियर. नेक्स्ट यू हैव fourth question. Here it is saying that the correct sequence shows decreasing order of ionic radii. Okay, again आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि कहीं ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो नहीं है. आपके पास क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, then you have magnesium, then you have sodium, F माइनस एंड O2 माइनस. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10. मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम के पास 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स. F माइनस पे 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऐड किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब है दीज आर ऑल्सो योर आइसो
इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, प्रोटॉन्स काउंट कर लेते हैं। 13 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स, 9 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन्स। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा एटॉमिक साइज कम होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से पुल करेगा। तो दिस विल बी योर एटॉमिक साइज। दैट मीन्स एल्यूमिनियम का सबसे छोटा होना चाहिए साइज, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। देन वी हैव एल्यूमिनियम के बाद आना चाहिए मैग्नीशियम +2। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। गॉट इट? समझ में आया? So you can clearly see that how easy questions come in exam. Just थोड़े से concept आपके clear होने चाहिए। ठीक है? Okay, fine. Let's move ahead. So next topic will be your ionization energy. ठीक है? Again, it is a very important topic for exam point of view. अच्छा, एक दो चीजें नोट करके लिख लो। दैट हाँ, बट जयिता, दीज आर योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नो? अब क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो अगर उनका पीरियड अलग भी है, अगर आप बात करो तो भी एटॉमिक साइज, क्योंकि प्रोटॉन्स पे जाओगे ना आप, बिकॉज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अगर कुछ और होता तो फिर हम उनका पूरा ग्रुप एंड एवरीथिंग बाकी सब चीजें देखते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का तो एक ही है, मैंने आपको रूल भी लिखवाया था कि अगर पहले क्या चेक करना है फिर क्या चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। जब इलेक्ट्रॉन्स ही उन सबके पास सेम हो गए, ऑल्दो उनका सब अलग है, मे बी ग्रुप्स अलग है, पीरियड अलग है, बट स्टिल अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, देन यू विल चेक फॉर कि कितना पावर है न्यूक्लियस में, कि कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर सकता है अपनी तरफ। ओके, अब अगर कुछ नोट डाल के एक दो चीजें लिख लो। सपोज क्वेश्चन आपसे पूछ ले, स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक अनायन, सबसे छोटा अनायन कौन सा हो सकता है? दैट इज योर F-, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो अगर अनायन पूछा है, अनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो वो कौन सा होगा आपके पास? F-। देन अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम अनायन, वो कौन सा हो जाएगा? आयोडीन-। अब आपसे पूछे स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक cation, then it will be H plus ion. Then you have largest monoatomic cation, तो आंसर हो जाएगा सीजियम प्लस। ओके, फ्रेंशियम को हम नहीं लेते, फ्रेंशियम प्लस होना चाहिए वैसे, बट उसको हम नहीं कंसिडर करते बिकॉज वो रेडियो एक्टिव होता है। स्मॉलेस्ट एटम की बात करें, दैट इज योर हाइड्रोजन, और लार्जेस्ट एटम की बात कर लो, दैट इज योर लिथियम। लिखो ये, अब इसको पीरियोडिक टेबल में देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट
अनायन कौन सा होगा, तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो जो भी है स्मॉलेस्ट में यही आएंगे, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, इनका एक्सेप्शन केस होता है, इनका तो साइज ज़्यादा ही होता है। तो सबसे छोटा अनायन कौन सा होगा, F माइनस। सबसे बड़ा अनायन कौन सा होगा, I माइनस। ये नहीं होता है क्योंकि दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। ऐसे ही स्मॉलेस्ट एटम की बात करें तो दैट विल बी योर हाइड्रोजन। अगर कटायन की बात कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा स्मॉलेस्ट में। और लार्जेस्ट की बात करें तो वो सीजियम हो जाएगा। फ्रैंशियम को कंसिडर नहीं करते अगेन, बिकॉज इसका जो एटॉमिक ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इन सबको एक ग्रुप में करके आपको लिखवा दिया, सो दैट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो यू विल हैव एवरीथिंग इन योर नोट्स। ओके, सपोज आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट आई हैव हियर लिथियम प्लस, और यहाँ पे है मेरे पास एल्यूमिनियम प्लस 3, विच विल हैव ग्रेटर साइज। और एक और ले लो, लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2। विच विल हैव अ ग्रेटर साइज, जल्दी से बताओ। You have to compare between lithium and aluminum, और सेकेंड वाले केस में lithium and magnesium plus 2, दोनों सब कटायन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, सो ये दोनों ही आपके एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। लिथियम का जो साइज है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम प्लस 3, जो कि नहीं होना चाहिए बट बड़ा होता है। यहाँ पे लिथियम का साइज बड़ा होता है मैग्नीशियम प्लस 2 से, जो कि हमको दिखने में लगेगा कि नहीं होगा, बट इसका साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका साइज इज, अगर हम पाइकोमीटर यूनिट में बात करें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 73 पाइकोमीटर। वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो साइज़ है वो होता है 52 पाइकोमीटर, इसका होता है 71 पाइकोमीटर, और ये अगेन हो गया 73 पाइकोमीटर। तो दिस इज़ द एक्सेप्शनल बिहेवियर, इसको याद करना पड़ेगा। यूजुअली होता क्यों है, ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में दिस हैज़ कम अ लॉट ऑफ टाइम। तो दिस स्मॉल साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज एक्चुअली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग contraction of वैलेंस शेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैलेंस शेल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कैसे, लिथियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2,1। एक इलेक्ट्रॉन को आपने हटा दिया, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे। इसका होता है 2,8,3। इसको आपने रिमूव कर दिया, तभी +3 चार्ज आया, तो सिर्फ बचा 2,8। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, बट एल्यूमिनियम में 3 प्रोटॉन्स अभी भी हैं, तो उनकी वजह से इतना ज़्यादा पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस, कि साइज जो है वो इतना कम हो जाता है कि लिथियम से भी कम हो जाएगा। और सेम इज द रीजन फॉर मैग्नीशियम ऑल्सो। सो राइट डाउन दिस।
करेक्ट ऑर्डर लिखना है एटॉमिक साइज का. राइट डाउन दिस. व्हाट विल बी द ऑर्डर, जल्दी से बताओ. नहीं कर पा रहे हो, लेट मी नो अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो. चलो पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, हियर यू कैन सी द पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. और हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. कैल्शियम है, देन वी हैव पोटेशियम ऑल्सो, देन chlorine, then we have this S2 minus and phosphorus. Okay, and end में you have this thing. Okay, fine. तो आपको इसमें एटॉमिक साइज बताना है. एंड इन दिस केस कैल्शियम पे है +2 चार्ज, पोटेशियम पे है +1 एंड Cl पे है माइनस एंड सल्फर पे है S2 माइनस, फॉस्फोरस में है P3 माइनस. ठीक है, सबसे पहले तो चेक कर लो कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. तो ये इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स. फॉस्फोरस में यू हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो क्लियरली अब आपको क्या चेक करना है, इनका न्यूक्लियर का पावर, बिकॉज दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सेम इलेक्ट्रॉन्स है. तो आप प्रोटॉन्स देखो किसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है, साइज उतना कम होगा. सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स यहाँ पे कैल्शियम के पास है, तो कैल्शियम +2 का साइज सबसे कम. देन पोटेशियम प्लस, देन यू विल हैव क्लोरीन Cl माइनस, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है. देन यू विल हैव सल्फर, देन फॉस्फोरस 3 माइनस. और सबसे ज़्यादा साइज होगा आर्गन का. ध्यान रखना है कि जो नोबल गैसेस होते हैं दे हैव वैंडरवाल रेडियस, और जो वैंडरवाल रेडियस होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी अदर काइंड ऑफ रेडियस, चाहे मेटालिक रेडियस हो चाहे कोवेलेंट रेडियस हो, जो कि हम नोट्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर. सो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा सा दिमाग लगा के. सब चीज़ें बहुत ईजी है. सो ऑर्डर विल बी Ca+2, देन अच्छा मैग्नीशियम पोटेशियम, हाँ, देन पोटेशियम प्लस Cl माइनस, S2 माइनस, P3 माइनस एंड लास्ट में आर्गन. आर्गन के लिए बात लिख लो. नोबल गैसेस हैव वैन डर वाल्स रेडियस, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एटॉमिक रेडियस. जितने भी एक्सेप्शंस थे सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी.
Okay. Now, what is ionization energy? Suppose this is your nucleus of an atom. Let's say I am taking the example of sodium here. I have sodium. Sodium has 2 electrons here, then 8 electrons in the second shell, and 1 electron in the last cell. Okay, so ionization matlab you require some energy to ionize. So the minimum amount of energy required to remove the valence electrons from an isolated gaseous atom, मतलब एक अलग से सिंगल हमने गैशियस एटम लिया हुआ है, उसमें जो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी हमको लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज योर आयोनाइजेशन एनर्जी. क्योंकि इतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को तो नहीं छोड़ेगा, तो यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी. तो जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और वो एनर्जी को गेन करके ये बाहर निकल जा रहा है, दैट energy required is known as your ionization energy. Is it clear? So here you can write down amount of energy required to remove one valence electron from an isolated gaseous neutral atom in its ground state is called as ionization energy. What is a ground state? That means when electron is in rest position. ठीक है, कुछ भी एटम रेस्टिंग पोजीशन में है, उसको कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई है, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. तो जितना भी एनर्जी हमको लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज योर आयोनाइजेशन एनर्जी. लिखो इसे. It is always endothermic in nature. What do you understand by endothermic? आपको हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज एंडोथर्मिक इन नेचर. यूनिट की बात करें, यूनिट इज किलो जाउल्स पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको. अभी के लिए बस किलो जाउल्स पर मोल लिख लो, मोस्टली यही देखने को मिलेगा आपको. सपोज मेरे पास कोई एटम है, लेट्स से एम ले रहे हैं हम, कोई मेटल है, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है. इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया, तो मुझे क्या मिलेगा, एम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आई इसको आप बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1. इसको शॉर्ट फॉर्म में आई ई लिखते हैं. दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी 1. नेक्स्ट है एम प्लस. मान लो अब हम इसी को ले रहे हैं, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हमने लूज किया, तो ये इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम प्लस 2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. दिस विल बी 1 सेकेंड. Yes, this will be called as ionization energy 2. Now if I take this m plus 2 और again मैं एक और electron remove कर दूँ, I will have m plus 3 and one more electron. This will be called as ionization energy 3. Okay. Now if I talk about ionization energy 1, ionization energy 2 and ionization energy 3, out of these three which is going to be greater in value? किसका value ज़्यादा होगा? क्रिश, n फैक्टर की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे तो मैं सिंपल बोल रही हूँ कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है,
तो उसको जितना एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वो एनर्जी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है। एन फैक्टर कहाँ से आ गया? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। Order of ionization energy will be ionization energy 3 will be greater than ionization energy 2 will be greater than ionization energy 1। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? Why this is happening? What is the reason why this is happening? Yes, Jaita, good। ठीक है, करेक्ट है। अब अगर मैं इसमें साइज की बात करूं, मेरे पास है m+3, m+2 एंड m+1। साइज ज्यादा किसका होगा? लाइक दिस, बिकॉज जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही ज़्यादा आपके पास न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो कटायंस होंगे साइज में वो अपने पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली साइज में कम होने वाले हैं। तो इनका साइज कम होगा। जब साइज कम होगा मतलब न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है। न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है साइज पे। जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ही कम क्या होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। गॉट इट? क्लियर है ये चीज़? सो इसमें यहाँ पे लिख लो within the element successive ionization energy is always higher than previous one due to decrease in size। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड, दैट मीन्स P3 हो या फिर D5 हो या फिर F7 हो, ये हाफ फिल्ड हो गए ना। P में आप 6 कंप्लीटली फिल कर सकते हो बट यहाँ पे 3 है। D में 10 कर सकते हो, यहाँ पे 5 है। F में 14 कर सकते हो, यहाँ पे 7 है। तो अगर एलिमेंट्स में हाफ फिल्ड है एंड या फिर फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड में क्या आ जाएगा? P6, D10, F14 orbitals are more stable and thus have high
वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कहीं पे ऐसा केस आ रहा है कि अगर हाफ फिल्ड हो रहा हो आपका ऑर्बिटल या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो रहा हो, तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और उस एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्यों हाफ फिल्ड जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, वाई दे आर मोर स्टेबल? हम बोलते हैं ना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? देखो, हाफ filled orbitals are more stable due to, पहला रीजन है सिमेट्री, देयर इज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर ज़्यादा सिमेट्री होती है उसमें, अगर आपके पास, आपने एक चेयर खरीदा, चेयर अगर आपके पास सिमेट्रिकल है तो वो ज़्यादा स्टेबली सरफेस पे लैंड करेगी, है ना, उसमें कोई इशू नहीं होगा, फर्मली उसको पुट कर सकते हो सरफेस पे। बट अगर उसकी सिमेट्री अच्छी नहीं है तो यहाँ वहाँ वो हिलेगी, इट विल नॉट बी दैट स्टेबल। तो पहला रीज़न हाफ फिल्ड के लिए कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उसमें। दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे पहले एक चीज लिख लो, मोर विल बी द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस of a particular electron, more will be the exchange energy and thus more will be the stability. Now what is this exchange energy and everything? Okay, if I take the example of chromium, okay, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, दिस इज 4s, 4s कंप्लीटली फिल्ड होता है और क्रोमियम में इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है क्रोमियम का, दैट इज योर 24। ठीक है, तो 24 को आप फिल कैसे करोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बैलेंस वालों को लिखा है, तो ये 4s हो गया और ये 3d हो गया। 3d में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। ओके, अब जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ओके, ये इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, ओके। इन द सिमिलर वे दिस सेकेंड वन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इन द सेम वे ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं। सेकेंड वाला ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 एक्सचेंजेस हैं यहाँ पे। आप लिख सकते हो टोटल 6 एक्सचेंजेस। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस वो कर पाएगा उतने ज़्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा? इज दैट क्लियर? यस और नो? ऐसे ही मान लो, अब हम ऐसा करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस 4s से इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये क्या हो गए? फिल हो गए। तो अभी जो आपको अरेंजमेंट दिख रही है वो कैसी दिख रही है? सिमेट्रिक। अगेन ये क्रोमियम ही है, इसकी अरेंजमेंट कैसी है? सिमेट्रिक दिख रही है, नहीं दिख रही है? यस और नो?
कंप्लीटली यहाँ पे एक फील्ड नहीं था, यहाँ पे दो था, यहाँ पे 1 1 1 थे, तो ये 3D था, तो अब 3D 5 हो गया, यहाँ पे 3D 4 था, ये 4S1 हो गया। भले ही S जो है वो आपके पास यहाँ पे दो थे, यहाँ पे एक ही है, बट ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया। यहाँ पे ये फुल्ली फील्ड था और ये इनकम्प्लीटली फील्ड था, तो इट्स बेटर टू हैव टू हाफ फील्ड। तो यहाँ पे हाफ फील्ड होने की वजह से अब आप इसकी एक्सचेंजेस देखोगे तो ये कहाँ कहाँ एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3 एंड 4, चार एक्सचेंज यहाँ पे हो गए। देन सेकेंड वाला 1 2 एंड 3, थ्री एक्सचेंजेस ये हो गए। देन 1 2, इधर दो हो गए। देन यू हैव लास्ट में दिस एक्सचेंज, ठीक है। तो आपके पास इतने सारे एक्सचेंजेस हो गए, काउंट करोगे तो आपके पास टोटल एक्सचेंज हो गए 10। अब जितना ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन्स को, उतनी ज़्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अभी समझ में आया रेणुका आपको? ओके फाइन। सो अगर आपसे कोई रीज़न पूछे, हम ऐसा बोलते हैं हमेशा कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो हाफ फील्ड का तो ये रीज़न है, और फॉर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स symmetrical arrangement लीड्स टू स्टेबिलिटी। वो तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो उनमें सिर्फ एक्सचेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। ये तो हाफ फिल्ड है, इसलिए आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हो। फुल्ली फिल्ड में आप एक्सचेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब फिल्ड है ऑलरेडी, जगह ही नहीं है। तो इसकी वजह से उसका रीज़न सिर्फ जो है वो है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का? सो पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड। बताओ क्या होना चाहिए? यू टेल मी, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज और डिक्रीज? जल्दी से बताओ। Across the period, that is when you are moving from left to right in the periodic table, ionization energy is going to increase, है ना, because size कम हो रहा है, तो ionization energy क्या होने वाला है, increase होने वाला है। Okay, very good. So write down, moving left to right in the periodic table, ionization energy gradually increases due to increase in Z effective on the valence shell of elements, but there is irregularity। ठीक है, थोड़े से उसमें इरेगुलरिटी होते हैं। अब जैसे कि हम बात करें सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स,
जिसमें कौन कौन से आएंगे हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कायदे से हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, ठीक है। तो सिंपली योर ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, ओके। बट ऑर्डर ऐसा नहीं होता, ठीक है, देयर इज लिटिल बिट ऑफ इरेगुलरिटी। और वो डिफरेंस कहाँ पे आता है, एक तो आता है आपके पास बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, दूसरा आता है आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। यहाँ पे आपको वेरिएशन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और नियॉन में भी अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चेंजेस जो भी इसमें आने वाले हैं वो लिख लो। लिथियम का सबसे कम, देन आ जाता है बोरॉन का, देन बेरिलियम का, देन कार्बन का सेम, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, देन फ्लोरीन का और देन नियॉन का। दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ओके। जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर रहे हो। नाउ टेल मी व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग दिस एनोमलस बिहेवियर हियर, क्या रीजन हो सकता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग हियर। टेल मी व्हाट शुड बी द रीजन, जल्दी से बताओ। नो वन नोज, कुछ सोच नहीं पा रहे हो। ओके देखो, यस अभिलाष, गुड। बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। दिस इज योर 1s2 2s2, दिस इज योर 1s2 2s2 2p1, ओके। तो ये फुल्ली फिल्ड है और ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो बेरिलियम और बोरॉन में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बोरॉन, ओके। जिसकी वजह से सॉरी, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बेरिलियम, जिसकी वजह से बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बोरॉन। सेम इज द केस ऑफ विद दिस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के लिए लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। तो ये हाफ फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड, ये कम्प्लीटली फिल्ड और p हियर इज हाफ फिल्ड। और यहाँ पे ये कम्प्लीटली फिल्ड, ये कम्प्लीटली फिल्ड और ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, नीदर हाफ है नॉर फुल्ली है। तो नाइट्रोजन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 2 निकालना चाहूँ, ओके, एक और लाइक इन सब के ऊपर प्लस चार्ज है और एक और हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उस केस में बेरिलियम का सबसे कम, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नियॉन और सबसे ज़्यादा हो जाता है लिथियम का, क्योंकि लिथियम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सट्रीमली बढ़ जाती है। यूजुअली एग्जाम में आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बहुत ही कम पूछते हैं, मोस्टली आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ही पूछेंगे।
तो आप बस इसी पे फोकस रखो। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर सेकेंड पीरियड। अभी अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में यू विल हैव सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। सो कायदे से देखा जाए तो दिस शुड बी द ऑर्डर, बट ये ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं होता। अब आप बताओ ऑर्डर क्या होगा, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट ऑर्डर? यस, सेम रीजन होगा, जो ऊपर वाला रीजन है वही एग्जैक्ट रीजन है। ठीक है, तो इसका अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 अगर हम निकालना चाहें तो ऑर्डर क्या होगा? सोडियम का तो कम होगा, बट पहले एल्यूमिनियम आ जाएगा, देन मैग्नीशियम, सिलिकॉन तो ठीक रहेगा, देन आ जाएगा आपके पास सल्फर, और फिर हो जाएगा फॉस्फोरस, देन क्लोरीन एंड देन आर्गन। तो आपको एनॉर्मलस बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, सेम रीजन है, जो ऊपर में रीजन था वही है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो, देन वी विल एंड द क्लास। विच एलिमेंट possesses highest value of ionization energy? Option A neon, 3s2, 3p1, B neon, 3s2, 3p4, neon, 3s2, 3p3, option D neon, 3s2, 3p5। जल्दी से आंसर बताओ। What will be your answer?
आंसर विल बी डी। ओके, आंसर हो जाएगा आपके पास डी, क्योंकि ये आपके पास हाफ फिल्ड है, बट आप ये देखोगे किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और बिहेवियर में जो चेंज है वो सिर्फ दो जगह ही आता है। एक तो यहाँ पे जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, अगर आप इसको 3p4 से कंपेयर कर रहे होते हैं, कहीं पे 3p जैसे इससे कंपेयर कर रहे हो, तो ऑफकोर्स इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, 3p1 से कंपेयर कर रहे हो तो ऑफकोर्स इसका ज़्यादा होगा, बट 3p5 का यहाँ पे ज़्यादा होगा। आप इसको ये एक्चुअली बात हो रही है इसकी, क्लोरीन की, तो ऑफकोर्स क्लोरीन का तो ज़्यादा है ना इन सबके कंपैरेटिवली आयनाइजेशन एनर्जी, तो आंसर है यहाँ पे डी। अब दो तीन क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो होमवर्क में करना है आपको। What is the value of ionization energy 2 of oxygen and fluorine in इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट यूनिट, आपको बस बताना है किस केस में होगा ऐसा। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। तो ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, एंड आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस, सॉल्व कर पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, नहीं कर पाओगे तो आई विल लेट यू नो।